Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 1, microeconomics, that is introduction. So student, today our topic is macroeconomics. Actually, our topic is branches of economics. Now, branches of economics. Branches of economics. Okay, and you know that the whole subject matter of economics can be classified into two main branches. First is microeconomics, and second is macroeconomics. Okay, and yesterday we have already discussed about the meaning of microeconomics. So today we will discuss the meaning of macroeconomics. Okay, our second topic is macroeconomics. And then first of all we will discuss our meaning of macroeconomics. Okay, so macroeconomics is the study of aggregates or averages covering the entire economy. Macroeconomics is the study of aggregates. क्योंकि वहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. टोटल इसमें टोटल एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, टोटल की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स और एवरेज कवरिंग the entire economy. Dear student, the entire economy. So it is derived from the Greek word. It is derived from the Greek word that is macros. Okay, which means large. Okay, for example, student, total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, aggregate supply, aggregate demand, general price level, wage level, cost structure, inflation, unemployment, balance of payment, exchange rate, monetary and fiscal policies, okay, etc. come under the scope of macroeconomics. अब वहां देखिए, वहां पर हमारे पास जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वहां केवल प्राइस होता है, ओके, फैक्टर प्राइसेस वगैरह. सो लेकिन यहाँ पर क्या होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में? जनरल प्राइस लेवल. ओके, जब जनरल प्राइस लेवल आता है तो वो हमारा किसकी स्टडी होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है. तो इन अदर वर्ड्स इट इज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स. In other words, it is aggregative economics which examine the interrelation among various aggregates, their determination and causes of fluctuations in them. Okay, so macroeconomics is concerned with the behavior of economy as a whole and is known as, yes, हम क्या कह रहे हैं, ये मेन पता होना चाहिए कि thus macroeconomics is concerned with the behavior of the economy as a whole
एंड इज नोन एज, और इसे हम क्या बोलेंगे, एंड इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरा लिखे हम यहाँ पर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। distinction between microeconomics and macroeconomics. तो स्टूडेंट बेसिस में अगर हम देखें, बेसिस फर्स्ट इज मीनिंग। तो मीनिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिस में फर्स्ट मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the behavior of individual units of an economy। जहां पर हम एक इकोनॉमी में सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, वो हमारी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole। जहां पर हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, एग्रीगेट के बिहेवियर की स्टडी करें तो वो हमारे पास क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट इज टूल्स। टूल्स, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई आर मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स aggregate demand and aggregate supply are the main tools of macroeconomics। Okay, now the next is objectives। objectives, so objective क्या है, microeconomics it aims to determine price of a commodity और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि एक कॉमोडिटी का प्राइस डिटरमिन करना या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइस डिटरमिन करना, ये मेन एम होता है। इट एम्स टू डिटरमिन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एम्स द डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर किसी एक गुड के प्राइस को डिटरमिन करना नहीं है, यहाँ पर एक इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डिटरमिन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, सो एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये स्टूडेंट एग्रीगेशन की, अब हम एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की स्टडी होती है, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या बोलेंगे, नो। एग्रीगेट की स्टडी किस में होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। बस क्या होता है यहाँ पर, देर इज ओनली डिफरेंस ऑफ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का ओनली डिफरेंस ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कितनी डिग्री आप एग्रीगेशन की स्टडी करते हो। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एक इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं, या हम मार्केट डिमांड की स्टडी करेंगे, या हम मार्केट सप्लाई की स्टडी करेंगे, तो वहां पर हमारे पास कुछ क्या होगा, थोड़ा एग्रीगेट हम लेते हैं। क्योंकि जब हम मार्केट डिमांड की स्टडी करते हैं तो एक मार्केट में एक प्रोडक्ट के मान लो 3 या 4 आपके क्या है, बायर्स हैं। सो उनको हमने क्या करना है, उन 3 या 4 बायर हैं एक प्रोडक्ट के, तो उनके सबके डिमांड को ऐड करती हैं, तो एग्रीगेशन वहां भी आता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या है, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या होती है, वो कुछ फर्मों का जो टोटल हमारे पास इंडस्ट्री होती है, तो उसमें कुछ फर्में इंक्लूडेड होती हैं।
सो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट की स्टडी होती है. बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. ठीक है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट सप्लाई इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट. ओके, एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा, क्योंकि इसमें पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी सारा होगा उन सबका टोटल लेंगे. सो इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. For example, aggregate demand या aggregate supply is derived for the entire economy. Okay. Now the next basis is assumption. Assumption. So student, assumption. So in microeconomics, it assumes all the macro variables to be constant. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब स्टडी करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि सभी जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. सो ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट लाइक नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग. एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स it assumes that all the micro variables to be constant like prices of individual product. Okay, then then next is other name. अब जो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी. ओके, इसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी. ओके, एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज ऑल्सो नॉन एज income and employment theory. Okay, and the last is examples in macroeconomics. Yes, individual income, price of a product. एक ही प्रोडक्ट के प्राइस हमने बताने, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है. ठीक है, इंडिविजुअल आउटपुट. ओके, एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम. आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट. लिया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई ओके, गवर्नमेंट बजट. तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Yes. Now the next topic is positive and normative economics. Positive and normative economics. So first is positive economics. Positive economics. Yes. So students, positive economics are those statements which are concerned with what is, what was, or what will be. Yes, positive economics are those statements which are concerned with what is, what was, or what will be under the given state of circumstances. Under the given
state of circumstances. तो स्टूडेंट आपके पास क्या होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से वो स्टेटमेंट है जिसके जो किससे कंसर्न रखती है कि क्या है, व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज क्या था, और व्हाट विल बी क्या होगा। ठीक है, क्या है, क्या था और क्या होगा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट, ये किसी तरह की कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करती। दे अलेज फैक्ट अबाउट द यूनिवर्स इन विच वी लिव। तो ये जो है मतलब जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं उसके बारे में फैक्ट्स जो है फैक्ट्स बताती है। ठीक है, मतलब वो आरोप लगाती है, फैक्ट्स बताती है। सो जैसे अकॉर्डिंग टू रॉबिन, यस, अकॉर्डिंग टू रॉबिन, रॉबिन्स economics is not concerned with, economics is not concerned with moral or ethical question, and economists and economy should only analyze the things, analyze the things as they have no right to give, no right to give judgment. ये देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन, ये किसी तरह के कोई मोरल और एथिकल क्वेश्चन से कंसर्न नहीं रखती है। एंड इकोनॉमी शुड ओनली एनालाइज द थिंग्स, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनको सिर्फ क्या करना चाहिए, जो जो चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में उनको जस्ट एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, वो एनालाइज करें एंड दे हैव नो राइट टू गिव जजमेंट, और उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो उनके ऊपर कोई जजमेंट करें। ठीक है, कोई जजमेंट दे उनके ऊपर। सो ये ऐसा कोई राइट नहीं है, वो एनालाइज करें लेकिन जजमेंट देने का राइट नहीं है। ओके, सो दीज स्टेटमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है, नेचर से ऑब्जेक्टिव है। एंड वेयर कॉज एंड इफेक्ट कैन बी डिटर्मिन, जहां पर कॉज और इफेक्ट को डिटर्मिन किया जा सकता है। एंड दे आर डिफिकल्ट टू डिस्प्यूट। So the following, देखिए फॉलो यहाँ पर कुछ एक, here are some examples of positive statement। तो हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट इज, it is impossible to lift a mountain, it is impossible to lift a mountain। ओके, ये एक फैक्ट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू लिफ्ट अ माउंटेन। सो ये बोला जा सकता है। एंड दूसरा, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, India is overpopulated। Third is, if the price of a product, if the price of a product increases, demand for that product will fall. Demand for that product will fall. Okay, so student, positive economic statement may be true or false। कि जो भी आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट होती है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ राजू सेज दैट नेपाल इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अमित सेज दैट चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, देन बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हाउएवर, राजू इज रॉन्ग एंड अमित इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज,
Next topic is normative statement. Normative statement. Yes, so normative statements are those statements which are about what should be, क्या होना चाहिए. ओके, व्हाट शुड बी. यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा है कि ये है, ये था और ये होगा. यहाँ होगा व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए. अगर कुछ है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए. सो दे डिपेंड ऑन आवर वैल्यू जजमेंट अबाउट व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. ओके, तो ये हमारी वैल्यू जजमेंट पर डिपेंड है, होता है इस बारे में कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. So these statements cannot be empirically tested as they involve judge value judgment. ठीक है, इनको empirically tested नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, वैल्यू जजमेंट. So normative economics, also called policy economics, given by Professor Marshall, deals with how the world ought to be, कि एक वर्ल्ड कैसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यस, for examples, the first, it is too hot. It is too hot today. So student, how can we test this? How can we test this? हम इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं अगर ये कहा जाए कि इट इज टू हॉट टुडे, क्या आज बहुत गर्मी है. सो हाउ कैन वी टेस्ट दिस, कैसे हम इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं. तो एक्चुअली क्या है, इट इज एन ओपिनियन, ये केवल एक ओपिनियन है. इट इज एन ओपिनियन. ओके, अब सेकंड एग्जांपल इज, वी शुड टेक अ पिक्चर, वी शुड टेक अ पिक्चर of the blue sky, of the blue sky. So again, ये क्या है आपके पास, अगेन अ रिकमेंडेशन और ओपिनियन. ये केवल क्या है, फिर से एक क्या है, अ रिकमेंडेशन और ओपिनियन. ओके, इसको भी कैसे टेस्ट कर सकते हैं. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज, वी शुड लोअर द प्राइस, वी शुड lower the price of homes. So student, we should lower the price of homes. हमें घर जो होम के प्राइसेस को कम करना चाहिए. So what is fear? Yes, तो यहाँ पर क्या है, can't test this, इसे भी टेस्ट नहीं कर सकते. Can't test this. It is how someone feels. ये तो फील कर रहा है वो कि किसी की फीलिंग पर है ये, कि कौन कैसे फील कर रहा है. So how someone feel. Okay. Now the fourth example is, to be fair, to be fair, minimum wage, minimum wage minimum wage should go up. Okay, so what is fair? What is fair? क्या fair है? Okay, what is fair? So there is no real definition. There is no real definition in economics. In economics about fairness, about fairness. So this can't be tested. So this cannot be
tested. Okay. So student, normative economics deals with what ought to be, क्या होना चाहिए, और how the economic problems should be solved. Like if we say India should not be an overpopulated country or prices should not be rise, then these statements are normative. Okay. Now the next is difference between positive economics and normative economics. Difference between positive economics, positive economics and normative economics. Okay. So basis positive economics and normative economics. Okay. So first base is meaning. Yes, meaning. So positive economics, it deals with what is or how the economics problems are actually solved. It deals with what is or how the economic problems are actually solved. Normative economics, it deals with what ought to be or how the economic problem should be solved. Okay. Now the second is verification. Verification. So in positive economics, it can be verified with actual data. ठीक है, एक्चुअल डाटा के साथ हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को, बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा. एक्चुअली इट इज एन ओपिनियन. ठीक है, क्योंकि जो ओपिनियन होते हैं उनको कैसे टेस्ट करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे. उसके बाद थर्ड इज सजेस्टिव. Yes. So in positive economics, it is based upon facts and thus not suggestive. ठीक है, क्योंकि facts पर based होते हैं, ये suggestive नहीं है. But normative economics, it is based upon individual opinion and therefore it is suggestive in nature. Okay. Now the next is value judgment. Value judgment. Value judgment. So student, in positive economics, it doesn't give any value judgment. That is, it is neutral between ends. But in normative economics, it gives value judgments. So examples. Examples. So in positive economics, बच्चे, positive economics example is जैसे for example prices in Indian economy are constantly rising. Are constantly rising. Okay, and second is there are inequalities of income in our economy. In our economy. And in normative economics, first example is India. India should take steps. India should take steps to control rising prices. Rising prices. And second example is income inequalities. Income inequalities should be reduced. Should be reduced. Okay, students. So, tomorrow we will discuss our central problems of an economy.
So that's all for today. Have a good day.